Good morning all my students. Today I shall teach class 3rd English book. Lesson 3. A handful of mustard seeds. Class 3rd का lesson 3. Lesson name है A handful of mustard seeds. First of all we learn and know about word meaning of this chapter. First, S-O-L-A-C-E. S-O-L-A-C-E. This word is pronounced solace. Solace, and its meaning is तसल्ली, सांत्वना या ढाढ़स. Second, D-E-P-R-E-S-S-I-N-G. D-E-P-R-E-S-S-I-N-G. This word is pronounced depressing, and its meaning is निराशाजनक. Third word is I-N-V-I-N-C-I-B-L-E. This word is pronounced invincible, and its meaning is अजय, जिसे जीता न जा सके. Fourth word is E-M-B-O-D-I-M-E-N-T. Embodiment. This word is pronounced embodiment. Embodiment, and its meaning is प्रतीक, मूर्त रूप, सिंबल, एज ए सिंबल, जिसको हम सिंबल कहते हैं. इस वर्ड का मीनिंग भी वही होता है, embodiment. Fifth word is C-O-M-P-A-S-S-I-O-N. C-O-M-P-A-S-S-I-O-N. Compassion. This word is pronounced compassion, and its meaning is सहानुभूति, दया, करुणा, as like pity. Pity means भी दया होता है. Sixth word is P-A-T-I-E-N-T-L-Y. P-A-T-I-E-N-T-L-Y. This word is pronounced patiently, and its meaning is धैर्यपूर्वक. Seventh word is G-R-I-E-F. This word is pronounced grief, and its meaning is दुख. Eighth word is S-O-O-T-H-I-N-G. This word is pronounced soothing. Soothing means कोमल, आरामदेह. Next word is A-M-I-D-S-T. This word is pronounced amidst. Amidst, and its meaning is cage. Tenth word is P-L-I-G-H-T. This word is pronounced plight, and its means दुर्दशा, बदहाली. Next word is D-I-S-A-P-P-O-I-N-T-E-D. Disappointed. This word is pronounced disappointed, and its meaning is निराश, हताश. Next word is A-G-O-N-Y. Agni. Agni means व्यथा, कष्ट. Next word is D-E-V-O-T-E. This word is pronounced devote, and its meaning is समर्पित करना. Next and last word is D-I-S-C-I-P-L-E. Disciple. Disciple means शिष्य, अनुयायी. Disciple means शिष्य या अनुयायी. और भी इसमें वर्ड हैं, आपको नोट्स में मिल जाएंगे. अब हम करते हैं. लेट्स रीड द स्टोरी and find out what happened at the end in this story. A handful of mustard seeds. The widow was sad as she had lost her only child. एक विधवा औरत बहुत उदास थी क्योंकि उसका एकमात्र लड़का मर चुका था, हो चुका था. She went to Lord Buddha in the hope of getting back the life of her child. वह
महात्मा बुद्ध के पास गई अपने बच्चे का जीवन पाने के लिए। What happened then? उसके बाद क्या हुआ? Let's read the story and find out. चलिए कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Once a poor widow came to महात्मा बुद्धा। एक बार एक बेचारी विधवा महात्मा बुद्ध के पास आई। Her only son was dead. उसका एकमात्र पुत्र मर चुका था। He was her only solace in the midst of her otherwise depressing life. उसका वह एकमात्र सहारा था, तसल्ली था उसके तनाव भरे जीवन में। उसका जो लड़का था एकमात्र सहारा था उसका तनाव भरे जीवन में, दुख भरे जीवन में। The thousands of other persons, men, women and children had gathered there. हजारों लोग, पुरुष, महिला, आदमी, बच्चे वहां पर जमा थे। महात्मा बुद्धा was sitting among the crowd with his invincible smile on his face. महात्मा बुद्ध उस भीड़ में एक अजय मुस्कान के साथ बैठे हुए थे। He was like the embodiment of kindness and compassion. वह एक दयालुता और करुणा की मूर्ति लग रहे थे। दयालुता और करुणा की मूर्ति या प्रतीक लग रहे थे। The poor widow sat in the corner and waited patiently. और वो बेचारी विधवा जो थी वो एक कोने में बैठ गई और धैर्यपूर्वक अपना इंतजार करने लगी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, महात्मा बुद्धा's eyes fell on the widow. महात्मा बुद्ध की आंखें उस विधवा पर पड़ी, नजर पड़ी। He called her. वह उसे नजदीक में बुलाए। You seem to be in grief. तुम दुखी जान पड़ती हो। What's your problem? तुम्हारी क्या समस्या है? He asked in a soothing voice. उन्होंने कोमल आवाज में उससे पूछा। The poor widow began to weep bitterly. जो विधवा औरत थी वो फूट फूट कर रोने लगी। My only son is dead. मेरा एक लौता पुत्र मर गया। She said midst sobbing. वह बीच में सुबकते हुए बोली। He was my only ray of hope for my old age. वह मेरा बुढ़ापा का एकमात्र सहारा था, किरण था। You are so divine. आप एक दिव्य पुरुष हैं, आप एक दिव्य आत्मा हैं। I know a mere touch of yours will bring my dead child back to life. मैं जानती हूँ कि आपके एक बार छूने से मेरे बेटे का जीवन लौट जाएगा, मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। You have to do me the favor. आप ऐसा करें। महात्मा बुद्ध was moved by the plight of that poor. महात्मा बुद्ध जो है उसकी दुख और परेशानी को देखकर बहुत द्रवित हो गए, बहुत पिघल गए। He was silent for a moment. वह कुछ क्षण तक चुपचाप रहे, मौन रहे। At last, आखिरकार, he said, उन्होंने कहा, I shall definitely help you. मैं तुम्हारी निश्चित मदद करूंगा। You take this bowl and bring some mustard seeds from the village. ये तुम कटोरा लो और कुछ सरसों के दाने गांव से ले आओ। But remember, लेकिन याद रहे, you should bring it from a house where death has never entered. लेकिन याद रहे, तुम्हें वहां से सरसों लाना है जहां पर मृत्यु कभी नहीं गई हो। मतलब महात्मा बुद्ध बोले ये कटोरा लो और सरसों लेकर गांव से, लेकिन गांव में उसी जगह से सरसों लाना है जहां पर कभी मृत्यु नहीं गई, यानी किसी घर में मृत्यु नहीं हुई हो। द पुअर विडो बिकेम होपफुल. अब गरीब विधवा, बेचारी विधवा आशावान हो गई,
शी टुक द बॉल एंड वेंट फ्रॉम दूर टू दूर। उसने कटोरा लिया और दरवाजे पर जाने लगी, सभी के दूर टू दूर गई। बट नोबडी गिव हर अल्म्स, लेकिन किसी ने उसे दान नहीं दिया। सम सेड, कुछ ने कहा माय फादर हैज डाइड, मेरे पिताजी मर गए हैं। Another said, दूसरे ने कहा माय ग्रैंडफादर हैज डाइड, ग्रैंडमदर हैज डाइड, और दूसरे ने कहा मेरी दादी मर गई है। एंड सो ऑन, इसी तरह सभी लोग बोलने लगे कि मेरे दादाजी मर गए हैं, मेरे फादर मर गए हैं। शी बिकेम डिसअपॉइंटेड, अब वह बहुत निराश हो गई। सडनली, अचानक ही, ए थॉट केम टू हर माइंड, उसके दिमाग में एक विचार आया। एवरीबडी हैज सफर्ड द पेन एंड एगोनी ऑफ डेथ ऑफ सम नियर एंड डियर वंस। अब उसके दिमाग में ये बात आया कि सभी लोग मृत्यु की पीड़ा से, व्यथा से ग्रसित हैं। किसी के करीबी मर गए हैं, किसी के बहुत एकदम प्यारे हैं वो मर गए हैं। अब जब उसको सरसों का दाना नहीं मिला तो वो बहुत निराश हो गई, और निराश होने के बाद उसके मन में एक विचार आया कि सभी यहाँ मृत्यु से लोग परेशान हैं, सभी लोग मृत्यु से परेशान हैं, और परेशानी सभी को मृत्यु ने जकड़ रखा है। और उसके दिमाग में आइडिया आया, ये विचार आया कि सभी लोग मृत्यु की व्यथा और कष्ट से ग्रसित हैं। किसी के करीबी मर गए हैं, किसी के बहुत ज्यादा करीबी, जिसे बहुत ज्यादा चाहते थे, वो मर गए हैं। देन व्हाई शुड आई फील सॉरी, तब मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। मैं क्यों दुखी हूँ? फॉर माई लॉट ओनली, अपने भाग्य के लिए। वो कह रही है कि देन व्हाई शुड आई फील सॉरी फॉर माई लॉट ओनली, तो मैं क्यों सिर्फ अपने भाग्य के लिए दुखी महसूस करूं? Why shouldn't I devote my life to remove their pain and suffering? क्यों नहीं मुझे उनके पीड़ा और कष्ट को दूर करना चाहिए। She forgot her own sorrow, अब वह अपना दुख भूल गई। When she returned to महात्मा बुद्धा, जब वह महात्मा बुद्ध के पास लौटी, she was completely changed, अब उसकी माइंड में आ चुका था कि why shouldn't I devote my life to remove their pain and sufferings? मुझे अपने जीवन में दूसरों की कष्ट और व्यथा दूर करना चाहिए। वो अपना दुख वो भूल गई। When she returned to महात्मा बुद्धा, जब वो महात्मा बुद्ध के पास लौटी, she was completely changed, अब वो पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी थी। She fell down on महात्मा बुद्धा's feet and said, "You have taught me a lesson." अब वो महात्मा बुद्ध के चरणों पर गिरकर बोली कि आपने मुझे एक पाठ पढ़ाया है। I have realized that nobody is happy in this world. आज मैंने समझा कि दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। Everybody has some sorrow or the others. सभी को कुछ न कुछ दुख तकलीफ है। I do not want to revive my dead child. मैं अपने मरे बच्चे का पुनर्जीवन नहीं चाहती हूँ, नहीं चाहिए। I shall try to help others overcome their pains and sorrow. अब मैं दूसरों की दुख और पीड़ा को दूर करने का कोशिश करूंगी। Make me your humble disciple and guide me how I can bring light to others. अब मुझे अपना शिष्या बना लीजिए और मार्गदर्शन करिए इन लोगों को दूसरे के जीवन में मैं कैसे प्रकाश ला सकूं। From that day, और उस दिन से she became the greatest follower of Lord Buddha, और वह लॉर्ड भगवान बुद्ध की सबसे महान शिष्या बन गई, सबसे महान अनुयायी बन गई। इस कहानी से हमें, इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि हमें
सिर्फ अपना दुख नहीं देखना चाहिए, दूसरों का भी दुख देखना चाहिए। सिर्फ अपने दुख में रहने से दुख का समाधान नहीं होगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब आइए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है। हु केम टू महात्मा बुद्धा वन डे? महात्मा बुद्धा के पास कौन आया था? पुअर विडो। सेकंड है व्हाई वाज महात्मा बुद्धा मूव्ड? महात्मा बुद्ध द्रवित क्यों हो गए थे, क्यों पिघल गए थे? तो plight ऑफ दैट पुअर विडो, उस गरीब बेचारी विधवा का दुख देखकर, तकलीफ देखकर। व्हाट डिड महात्मा बुद्ध आस्क द ओल्ड वुमन टू ब्रिंग? महात्मा बुद्ध ने उस बुढ़िया बेचारी विधवा को क्या लाने के लिए कहा था? सम मस्टर्ड सीड्स। I had tick the correct option. The poor widow sat in one corner and waited. क्या patiently, eagerly, sadly? तो वो patiently, धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थी। The poor widow began to cry, weep, yell. Poor widow wept bitterly. वो फूट कर रोने लगी। Bring some blank space seeds from the village. पंपकिन, मैंगो, मस्टर्ड। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कौन सा सीड लाने के लिए बोला था? तो मस्टर्ड सीड्स। ब्रिंग सम मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम द विलेज। बट नोबडी गिव हर सीड्स, alms, एनीथिंग। alms मतलब होता है भिक्षा या दान। तो किसी ने उसे क्या नहीं दिया था? दान नहीं दिया था। तो बट नोबडी गिव हर alms। She became the greatest of Lord Buddha. Friend, enemy या follower? Follower means होता है अनुयायी। वो क्या बन गई थी? लॉर्ड बुद्धा की अनुयायी बन गई थी। She became the greatest follower of Lord Buddha. अब है ट्रू फॉल्स है। The widow's only son was dead. उस विधवा का एकमात्र बेटा मर गया था। तो हाँ, ये सेंटेंस ट्रू है। महात्मा बुद्धा प्रॉमिस टू हेल्प द पुअर विडो। महात्मा बुद्ध ने उस बेचारी विधवा को मदद करने का वादा किया था। तो नहीं, वादा नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से मदद करूंगा, लेकिन ये प्रॉमिस नहीं किया था कि वो उस बेटे को जिला देंगे। बस ये उन्होंने इसे एक लेसन सिखाना था कि नहीं, सिर्फ तुम्ही को दुख नहीं है, वे दुनिया के लोग भी दुखी हैं। सो उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया था। ये सेंटेंस फॉल्स होगा। महात्मा बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग ए बॉल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम द विलेज। महात्मा बुद्धा ने उसे एक कटोरा सीड्स, मस्टर्ड सीड्स गांव से लाने के लिए कहा था। हाँ, ये सेंटेंस ट्रू है। ऑल द पीपल इन द विलेज गिव हर alms। सभी गांव के सभी लोग उसे दान दिया? नहीं, किसी ने उसे दान नहीं दिया, क्योंकि कोई भी घर ऐसा नहीं था जहां पे मृत्यु नहीं आई हो। ये सेंटेंस फॉल्स होगा। द विडो बिकेम ए फॉर महात्मा बुद्धा। वो जो विधवा औरत थी वो महात्मा बुद्ध की अनुयायी बन गई। हाँ, तो ये सेंटेंस ट्रू है। महात्मा बुद्ध की वो अनुयायी बन गई थी। चलिए, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जितने नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे और आप घर पे इसको फेयर पे लिख लीजिएगा, फेयर बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।